Good morning, students. Today we will discuss about some important questions related to ignition temperature. In the last class, we learned about ignition temperature. What is ignition temperature? Is a kind of temperature at which or above which a combustible material catches fire. It's a very important question for final exam also. Raise, what is ignition temperature? It is a temperature at which or above which a combustible material can catches fire. Very important question. Right? We will discuss about some questions related to ignition temperature. First of all, we can boil butter in paper cup. Why? तो पेपर कप में हम लोग वाटर लेके उसको बॉयल कर सकते हैं. क्या रीजन है? The reason is that if we are taking, suppose there is paper cup, one is vacant and another contain water. Okay, one paper cup it contain water and another paper cup it is vacant. We are heating both of this. We are providing heat both of this. Then what will happen? The paper cup which is vacant, it will catches fire. Why? Because the ignition temperature of paper cup is quite less. But when the paper cup contain water, when we are providing some heat, some amount of heat will be absorbed by the water. कुछ heat water भी absorb कर लेगा. As a result, the paper cup will not attain its ignition temperature. तो paper cup अपना ignition temperature को attain नहीं कर पाएगा. As a result, it will not be burned. And the water can be boiled. तो क्या हो जाएगा कि जब हम लोग वाटर लेके पेपर कप को हीट कर रहे हैं, है ना, इसको कहीं पे रखना है बीच में, है? जब हम लोग क्या करेंगे, पेपर कप में वाटर लेके बॉईल करेंगे, कुछ हीट पेपर कप में जो वाटर है वो भी एब्जॉर्ब कर लेगा, जिसके लिए क्या हो जाएगा कि पेपर कप अपने इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच नहीं पाएगा. एज ए रिजल्ट इट विल नॉट कैचेस फायर एंड द वाटर कैन बी बॉइल्ड. ठीक है, तो इसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं कि a paper cup containing water when heated, some amount of heat will be absorbed by the water. As a result, paper cup will not be able to attain its ignition temperature. So water can be boiled in paper. Write down this answer. तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पेपर कप में वाटर लेके हम लोग इसको बॉयल कर सकते हैं, क्योंकि कुछ हीट पेपर कप में जो वाटर है वो भी एब्जॉर्ब कर लेगा, जिसके लिए क्या होगा कि पेपर कप बर्न नहीं होगा. इफ द पेपर कप इज वैकेंट देन इट विल कैचेस फायर. राइट, लेट अस प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट वन. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज व्हाइट फॉस्फोरस catches fire at room temperature in summer. Why? तो जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि व्हाइट फॉस्फोरस में आग लग जाता है जब ये रूम टेम्परेचर में हम लोग इसको रखेंगे. ठीक है, कौन से टाइम में? इन समर.
ठीक है। अच्छा, कहीं स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो उसको करेक्ट कर लेना। तो बात करते हैं द इग्निशन टेम्परेचर, द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ वाइट phosphorus is 35 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है बच्चों, तो बात क्या है कि इग्निशन टेम्परेचर वाइट फॉस्फोरस का कितना होता है 35 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। 35 डिग्री सेंटीग्रेड मीन्स एट 35 डिग्री सेंटीग्रेड और अबव 35 डिग्री सेंटीग्रेड द वाइट फॉस्फोरस कैन कैचेस फायर। इन समर room temperature becomes more than 35 डिग्री से। तो समर में रूम टेम्परेचर क्या हो जाते हैं 35 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो जाते हैं, है ना। सो वाइट फॉस्फोरस catches fire at room temperature in sun। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बेटा कि इग्निशन टेम्परेचर व्हाइट फॉस्फोरस का क्या होता है 35 डिग्री सेंटीग्रेड। द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ व्हाइट फॉस्फोरस इज 35 डिग्री सेंटीग्रेड। In summer, it has been observed that the room temperature becomes more than 35 degrees. In Gumla, we are facing that the temperature, the room temperature in summer becomes more than 40. Okay, it means when the temperature rises and it becomes more than 35, then what will happen? The white phosphorus is attain its ignition temperature, and at that time, in the presence of oxygen, it will catches fire. Okay, very important. We proceed for the next one. हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। फ्लेम ऑफ अ बर्निंग कैंडल get extinguished while we blow air over it। एक बर्निंग कैंडल है, इफ यू ब्लो एयर ओवर इट, अगर इसके ऊपर से हम लोग एयर को ब्लो कराएं तो ऐसे ऐसे किए, देन व्हाट विल हैपन? इट विल एक्सटिंग्विश। द क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द रीजन फॉर दिस। आपको इसके लिए एक 3 पॉइंट याद रखना है। द कंडीशंस ऑफ कंबशन रिएक्शन, वी लर्न द कंडीशंस ऑफ कंबशन रिएक्शन। दैट इज नंबर 1, there must be a combustible material, combustible material should be there, that is the first condition. Second condition is that continuous supply of oxygen, okay, second is supply of oxygen. Third one, the provided temperature should be more than the ignition temperature, means आपको combustible material को उसके ignition temperature तक पहुंचाना है, तभी जाके बर्निंग होगा, कंबशन होगा। बट इफ यू ब्लो ओवर इट, देन व्हाट विल हैपन? वी कैन कट ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ओके, बाय ब्लोइंग ओवर बर्निंग कैंडल द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन गेट कट ऑफ। तो भाई ब्लोइंग वी कैन कट ऑफ द ऑक्सीजन, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ओके। तो ये जो ब्लो करेंगे अगर हम लोग कैंडल के ऊपर से, तो इसका जो एयर का सप्लाई जो हो रहा था, मीन्स ऑक्सीजन का सप्लाई हो रहा था, वो स्टॉप हो जाएगा, कट ऑफ हो जाएगा। एज ए रिजल्ट, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, द फायर विल बी एक्सटिंग्विश्ड। एज ए रिजल्ट,
the fire will be extinguished. extinguished, extinguished due to the absence of oxygen. absence of ऑक्सीजन। तो बच्चों अगर हम लोग ऐसे ब्लो करेंगे तो ऑक्सीजन का जो सप्लाई हो रहा था वो कट हो जाएगा। एज ए रिजल्ट इसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा उस कंडीशन में, तो क्या हो जाएगा, ये बर्निंग बंद हो जाएंगे। देयर इज अनदर पॉइंट आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग इट, यू हैव टू राइट इट बाय योरसेल्फ। तो दूसरा पॉइंट क्या है कि जब हम लोग इसके ऊपर से ब्लो करते हैं तो इसका टेम्परेचर जो है वो रिड्यूस होता है। ओके जैसे कि अगर हम लोग हाथ के ऊपर से ऐसे करेंगे तो क्या होगा, ठंडा लगेगा। मीन्स व्हेन यू ब्लो ओवर द कैंडल, बर्निंग कैंडल, देन द टेम्परेचर ऑफ द बर्निंग कैंडल, एग्जिस्टिंग टेम्परेचर, जो टेम्परेचर था बर्निंग कैंडल का, इट विल गेट रिड्यूस्ड, वो कम हो जाएंगे। एंड व्हेन इट बिकम्स लेस देन द इग्निशन टेम्परेचर, व्हाट विल हैपन, इट विल बी एक्सटिंग्विश्ड। तो जब भी इग्निशन टेम्परेचर से नीचे आ जाएगा तभी क्या हो जाएगा, आग बुझ जाएगा। तो ये मैटर होते हैं। तो दिस आर द टू रीजंस for which while blowing over the candle it will extinguish. The first reason is that by blowing over the candle we can cut off the supply of oxygen. ऐसे ही लिखना है, ज़रूरी नहीं है, आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। While blowing over the candle, what will happen, we can cut off the supply of oxygen, and as a result, due to the absence of oxygen, the combustion will be stopped, burning of candle will be stopped, it will be extinguished. Second one, that is by doing this we can reduce the temperature. We are reducing the temperature, fine. As we are reducing the temperature, and when the temperature becomes less than the ignition temperature of the candle, then it will be extinguished. तो जब भी हम लोग ऐसे करेंगे तो इसका टेम्परेचर धीरे धीरे रिड्यूस होगा, और जब भी ये टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर से कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आग बुझ जाएगा, इट विल बी एक्सटिंग्विश्ड। तो इन दिस क्लास we discussed about these three important questions, very important questions related to ignition temperature. इतना तक आप लोग लर्न करें, and in the next class we discuss about the remaining portions of the chapter combustion. पढ़ाई करते रहें।